अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Am I audible? Yes, alhamdulillah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, we'll start with the 38th session of Golden Stories of Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, page number 297. Year of the Ashes. Hazm bin Hisham related that his father said, once during the year of the ashes, I saw Umar radhiyallahu anhu pass by a woman who was busy making porridge. Umar radhiyallahu anhu said to her, this is not how you should make porridge. He then took a spoon and said, this is how you should make it. He then showed her what he meant. And he would say to women, do not sprinkle the flour onto the pot until the water becomes hot. In fact, sprinkle in the flour a little at a time. And all the while, stir it with a spoon. That will make the texture smoother and will prevent it, that is the porridge, from developing clumps. And when I once spoke to one of the wives of Umar radhiyallahu anhu, she said to me, during the period of the year of the ashes, Umar radhiyallahu anhu was so overwhelmed by grief and sorrow and worry for his people that he did not even once come near any of his wives in order to engage in sexual intercourse. As we can understand that जब भी ड्रॉट आया था, सूखा पड़ा था, और वो इतना ज्यादा सूखा पड़ा था कि ऐसा लगता था मानो कि जमीन पे से जैसे कहते हैं ना राख उड़ रही हो, बिल्कुल पानी नहीं था, बहुत सूखा था और बड़ा ग्रीफ का टाइम था ये, तो उसको ईयर ऑफ एशेस कहा जाता है। तो हजम बिन हिशाम रिलेट करते हैं कि उनके वालिद ने कहा था, एक दिन ईयर ऑफ द एशेस में उमर रदियल्लाहु अन्हु पास बाय कर रहे थे, तो एक औरत जो है वो पॉरिज बना रही थी। तो वो जब पॉरिज बना रही थी तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उससे कहा, औरत से, कि ये तरीका नहीं है बनाने का। फिर उन्होंने स्पून लिया और फिर उसको बताया कि धीरे धीरे एक एक चम्मच जो है वो जो फ्लावर है वो डालते हैं हॉट वाटर के अंदर और बिना गिराए ढंग से तरीके से, और फिर उसको धीरे धीरे हिलाते हैं ताकि टेक्सचर जो है वो स्मूथ हो और अंदर क्लम्प्स नहीं बने, गुठलियां नहीं बने। और एक बार जब इनकी जिक्र हुआ था, एक वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ उमर रदियल्लाहु अन्हु के वाइफ के साथ जिक्र हो रहा था, तो वाइफ ने कंफर्म किया कि ये जब ईयर ऑफ एशेस था तब वो इतना ज्यादा परेशान और गमजदा थे कि एक बार भी इंटीमेसी के लिए, सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए अपनी वाइफ के पास वो नहीं पहुंचे। यानी ही वाज सो कंसर्न, इतना ज्यादा वो परेशान रहते थे कि उनकी जो लोग हैं अंडर, जो उनकी मुस्लिम नेशन है, जो गरीब तबका है और जो परेशानी के हाल में है, तो ऐसा नहीं है कि लोग गरीब जो हैं, उनके जो उम्मत है वो परेशान हो और जो टॉप में लीडर्स हैं वो अपने पुरसुकून जिंदगी बिता रहे हो। He was concerned, he was totally involved in it. वो उनके दुख में पूरी तरह से शामिल होते थे। That is a sign of a great leader, of a great servant leader. O leader of the believers, give your companion glad tidings of a baby boy. Late one night, while patrolling the streets of Medina, Umar radiallahu anhu entered a wide open space and came across a roughly built tent, a tent that had not been present at that spot the night before. Umar radiallahu anhu could clearly hear the moaning voice of a woman emanating from inside of the tent, and he radiallahu anhu also saw a man sitting directly outside the makeshift door of the tent. Umar radiallahu anhu drew near to the man, extended greetings of peace, and said, "Who are you?" "I am a man who is from the people of the desert," replied the man. "I have come here in order to meet with the leader of the believers and to be a beneficiary of his generosity." "And what about the voice that I hear coming from inside of the house?" Umar radiallahu anhu asked. When the man explained that there was a woman inside of the tent who was in labor, Umar radiallahu anhu asked, "Is there anyone with her to help her?" "No," replied the man. Umar radiallahu anhu rushed back to his home, and upon entering it, he said to his wife, Kulthum bint Ali radiallahu anhu, "Allah has brought to you a means of gaining rewards. Are you up for the task of going after those rewards?" "And what is it that I need to do to get those rewards?" asked Kulthum. "A newly arrived woman is in the labor and she has no one with her to help her," replied Umar radiallahu anhu. एक बार एक लेट नाइट को जब मदीना की गलियों को उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु पेट्रोलिंग करते थे, दौरे पे जाते थे, तो एक वाइड एरिया, खुला सा एरिया था, उधर वो आए। वहां पर एक टेंट बंधा हुआ था, खेमा लगाया हुआ था, रफ खेमा बना हुआ था। तो और उन्हें अच्छी तरह से याद था कि ये टेंट अभी अभी बना था, यानी एक रात पहले नहीं था। और फिर उन्होंने देखा कि अंदर से एक औरत के कराहने की आवाज आ रही है।
दर्द के मारे कराने की आवाज आ रही है, और उस टेंट के गेट के यानी उसके एंट्रेंस के पास एक आदमी बैठा हुआ है। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उसको सलाम की और उससे पूछा कौन हो आप। उसने कहा कि मैं डेजर्ट से आया हूँ। फिर उन्होंने कहा कि क्या यानी किस काम से, तो ही सेड कि मैं अमीरुल मोमिनून से मिलने के लिए आया हूँ और उनकी जो जेनरोसिटी है, मसलन कि वो बहुत ज्यादा गनी है, तो उससे कुछ फायदा उठाने आया हूँ। फिर उन्होंने आवाज की तरफ इशारा किया उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कि क्या माजरा है। तो उन्होंने बताया कि वो मेरी वाइफ है जो लेबर में है। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा कि उनके पास कोई है अटेंड करने के लिए, तो आदमी ने कहा नहीं है। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु अपने घर गए, अपनी वाइफ उम कुलसूम रदियल्लाहु अन्हा को कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन अजर का इंतजाम किया है। तो उन्होंने पूछा कि क्या मुझे करना पड़ेगा वो अजर लेने के लिए। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने बताया कि एक बाहर से न्यूली अराइव्ड औरत है जो लेबर में है और यानी उसको असिस्ट करना है। इस पर उनकी वाइफ ने कहा कि आई विल ग्लैडली हेल्प इफ यू विश, सेड कुलसुम रदियल्लाहु अन्हा। Then gather what the woman needs for the impending delivery in terms of rags and oil. Also bring me a pot, some cooking fat, and some grains. Shortly thereafter, Kulthum radiallahu anha returned with the items he had asked for. After which Umar radiallahu anhu said, "Now let us go." तो वाइफ से परमिशन ली कि क्या वो अजर कमाना चाहती है, और वो ग्लैडली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ चंद सामान गैदर कर लो, जैसे कि कपड़े, तेल, पॉट, कुकिंग फैट और कुछ दाने, यानी खाने पीने की आइटम है, और जो डिलीवरी के लिए सामान लगेगा वो ले लिया। और फिर वो दोनों टेंट की तरफ दौड़े। Umar radiallahu anhu carried the pot and Kulthum radiallahu anha walked behind him. Upon reaching the tent, Umar radiallahu anhu said to Kulthum radiallahu anha, go inside to the woman. Meanwhile, Umar radiallahu anhu sat down beside the man and said to him, light a fire for me. When a suitable fire was ignited, Umar radiallahu anhu proceeded to cook some broth over it. By the time the broth was fully cooked, Kulthum radiallahu anha called out to Umar radiallahu anhu, saying to him, O leader of the believers, give your companion glad tidings of a baby boy. अब ऐसा हुआ कि उमर रदियल्लाहु अन्हु ने पॉट पकड़ा, उनकी वाइफ उनके पीछे पीछे चल रही थी। टेंट में पहुंचने के साथ ही उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको कहा अंदर जाके हेल्प करो। और फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु वो शख्स के साथ बैठ गए, उससे कहा कि आग जलानी है, और फिर आग जलाई और वहां पर वो ब्रॉथ जो है कुक करना शुरू किए। और फिर जब ब्रॉथ पूरी तरह से कुक हो गया, यानी ब्रॉथ की मानी वो ग्रेन्स का एक अच्छा खासा खाने के लिए फीमेल के लिए, बिकॉज शी माइट रिक्वायर आफ्टर लेबर, शी विल बी वेरी टायर्ड, तो उसके लिए खाने का इंतजाम कर रहे थे। और फिर अंदर से आवाज है अमीरुल मोमिनीन अपने साथी को, जो वो आदमी था, उसको बेटे की खुशखबरी दे दो। The Bidun man seemed more affected by the words leader of the believers than he was by the announcement of the delivery of his baby boy. He could not believe that the man who had helped him so late in the night was none other than the leader of the entire Muslim nation. अब वो बिदून आदमी जो था, उसको बेटे की खबर जो है वो इतनी ज्यादा इम्प्रेस नहीं करी, जितनी ज्यादा कि जिस तरीके से उनकी वाइफ ने कुलसुम रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, अमीरुल मोमिनून उनको मुखातिब होते हुए कहा उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को, तो ये जो बिदून था वो इतना ज्यादा परेशान हुआ कि ये जो आदमी आधी रात को मेरी मदद कर रहा है, भाग के खुद काम कर रहा है, ये और कोई नहीं है, यही है खलीफा, यही है लीडर ऑफ द मुस्लिम नेशन। The man was in awe of Umar radiallahu anhu and he moved back a little bit as a sign of respect for the Khalifa. Putting the man at ease, Umar radiallahu anhu said, stay where you are. He then picked up the pot, placed it in front of the tent's door and said to Kulsum radiallahu anha, make sure that she, that is a woman who had just delivered a baby boy, eats until she becomes full. After Kulsum radiallahu anha finished serving the woman the broth that Umar radiallahu anhu had prepared for her, she placed the pot outside the door of the tent. Umar radiallahu anhu then took the pot, placed it in front of the man and said to him, woe upon you. Eat, for you have remained awake throughout the night. Umar radiallahu anhu then said to his wife, come out then. Before leaving, Umar radiallahu anhu said to the man, come to me tomorrow and I will order that you be given what you need. The following day when the man visited him, Umar radiallahu anhu not only gave him what he needed, but also ordered that the man's newborn son be allotted an allowance from the Muslim treasury. उन्होंने ब्रॉथ कुक किया और फिर पकाने के बाद टेंट के बाहर रखा और अपनी वाइफ को कहा कि ये उस औरत को दो और उनको खिलाओ, सर्व करो जब तक कि वो फुल ना हो जाए। और फिर उसके बाद उनकी वाइफ ने वो जो मदद थी उसको पूरा खिलाया और फिर बचा हुआ बाहर रखा।
फिर वो बचा हुआ खाना उमर रदियल्लाहु अन्हु ने वो बिदुन को दिया और उनको भी यानी ताकीद की कि आप खाओ ये पूरा। अब जब ये आदमी को पता चला कि ये खलीफा है तो वो रिस्पेक्ट में थोड़ा सा पीछे हो गया। मतलब एक आपको अंदाजा लग जाता है ना कि लाइक एक हाई स्टेटस का आदमी इस तरीके से आपकी मदद कर रहा है, सडनली यू रियलाइज कि यू हैव बीन टेकन हिम फॉर ग्रांटेड। लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई किंग के लेवल का आदमी, खलीफा के लेवल का आदमी इस तरीके से आपके साथ ग्राउंड जीरो पे आके खुद अपने हाथ से खाना पकाए, खुद अपने हाथ से सर्व करे। इस तरीके की आजिजी आम देखी नहीं जा सकती। तो इसीलिए आउट ऑफ शेयर रिस्पेक्ट एंड ऑल ही वाज गोइंग बैकवर्ड्स, यानी वो थोड़ा पीछे जा रहा था। एनीवेज उमर रदियल्लाहु अन्हु वाज सो नॉर्मल थ्रू आउट। जितना उन्होंने काम करना था, जो जो उनको एक्शंस लेने थे, उन्होंने बाकायदा उसको बखूबी निभाया, अपनी फैमिली को भी उसमें इन्वॉल्व किया। एंड देन वो औरत को भी खाना प्रोवाइड किए, बेइज़्निल्लाह वो आदमी को भी खाना खिलाया, उसको भी कहा कि तुम रात भर जागे रहे। और फिर उन्होंने अपनी वाइफ को वो कहा कि अभी हम चलते हैं, और फिर निकले और उस आदमी से कहा कि कल सुबह आकर उनसे मिले। और फिर ऑर्डर दिया कि जो कुछ इस आदमी की जरूरत है उसको वो दे दिया जाए, और वो जो न्यू बॉर्न बेबी था उसको मुस्लिम ट्रेजरी से भी अलाउंस अलॉट किया गया। यानी उनकी जो जनरोसिटी है फॉर ट्रैवलर्स, फॉर गरीब पीपल, फॉर बदून, कंटिन्यूसली बनी रहती थी। और सिर्फ वो ऑर्डर्स नहीं देते थे, यानी ही वाज नॉट लाइक अ टिपिकल बॉस सिटिंग विद हिज लेग्स क्रॉस्ड। वो खुद काम करते थे, खुद अपने हाथों से बनाते थे, खुद अपने हाथों से सर्व करते थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट्स फॉर अस इज दैट, एक ही चीज मैं कहूंगी कि अपने आप को इतना एक्टिव रखें और अपने आप को इतना इन्वॉल्व रखें, अपने काम, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इतना सीरियसली लें कि आप रादर देन जस्ट डेलीगेटिंग गो डाउन एंड डू द जॉब। यू शुड नो द जॉब, यू शुड बी एबल टू डू दैट जॉब, और अपने आप को पूरी तरह से जस्टिफाई करें उस पोजीशन के लिए। और हम लोग जो हैं, आवर ड्यूटीज एज अ वाइफ, आवर ड्यूटीज एज अ मदर, जस्ट आस्क योरसेल्फ, ये होता है सेल्फ असेसमेंट का टाइम। जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या आप अच्छी तरह से अपनी वाइफ की ड्यूटी अदा कर रही हैं, क्या अच्छी तरह से अपने माँ होने की ड्यूटी अदा कर रही हैं? क्योंकि अगर आप नहीं कर रही हैं तो ये बात आप जहन में रखनी कि बीइंग अ मुस्लिम इट्स योर ड्यूटी टू जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर रोल। जो कोई रोल आपके ऊपर अल्लाह ताला ने, जिसे हम कहते हैं ना कि दीज आर ऑल द थिंग्स दैट अल्लाह अज़्ज़ा वजल इज गोइंग टू आस्क अस, हम अकाउंटेबल हैं ये सारी पॉइंट्स के लिए। तो क्या हम वो सारे अपने रोल बाखूबी अदा कर रहे हैं? हमारा रोल एज अ डॉटर, हमारा रोल एज अ वाइफ, हमारा रोल एज अ मदर, हमें इसको अच्छी तरह से करना होगा, इस ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाना होगा। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ राइट्स क्लेम करने वाले हो गए, हम सिर्फ अपना हक लेने के वो हो गए हैं, कंसर्न हो गए हैं, लेकिन अपनी ड्यूटीज हम अदा नहीं करते। और हम सिर्फ सामने वाला क्या हमारे लिए कर रहा है उसकी गौर फिक्र करते हैं, लेकिन हम क्या उसके क्या हम जस्टिफाई कर रहे हैं अपने रोल को, इसकी हमें परवाह नहीं होती। इस टाइप की जो लेजीनेस या इस टाइप का जो वन ट्रैक माइंड है, इसको बदलना होगा। और सारे हमारे जितने भी रोल्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, वो सारे के सारे रोल्स को हमें बाखूबी निभाना पड़ेगा। और इसके लिए अल्लाह ताला की मदद चाहिए, जो कि डेफिनेटली कांस्टेंट दुआ से होती है, कांस्टेंट अल्लाह के जिक्र से होती है, अल्लाह से कनेक्टेड रहने में होती है, इस्तगफार करने में होती है, और ऐसी कंपनी जो आपको इस चीज की याद दहानी दिलाते रहे। Foremost capable judges of this nation, Abu Musa radiallahu anhu was blessed not just with theoretical knowledge, but also with the practical ability to solve real life problems, to apply his knowledge to everyday situations, and to dig out the truth when he had to settle disputes between opposing litigants based on these and other qualities. Abu Musa radiallahu anhu became a brilliant, capable, and wise judge. In fact, according to Ash-Shabi's estimation, Abu Musa radiallahu anhu was one of the 4 most capable judges of this nation. Or as Ash-Shabi put it, the following were the preeminent judges of this nation: Umar radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu, Zaid bin Thabit radiallahu anhu, and Abu Musa radiallahu anhu. जो 4 सबसे काबिल जजेस थे इस नेशन के, अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु जो थे, वो बेहतरीन किस्म की थियोरेटिकल नॉलेज उनके पास थी और प्रैक्टिकल एबिलिटी भी उनके पास थी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए एवरीडे सिचुएशन में। और वो ऐसी तहकीक करते थे कि सच्चाई हक को बाहर निकालते थे और फिर डिस्प्यूट्स जो है सेटल करते थे। और जब इस तरीके से वो अपना काम करते थे तो उसमें अपोजिशंस कम ही होती थी, यानी पीपल जो कंप्लेनेंट्स और जो डिफेंडेंट्स होते थे वो फिर अपोज नहीं कर पाते थे, बिकॉज सब सच की बेसिस पर होता था।
बेस्ड ऑन दीज एंड अदर क्वालिटीज अबू मूसा जो है वो अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु जो है बहुत ब्रिलियंट, बहुत काबिल, बहुत हिकमत वाले जज बने। इनफैक्ट अशाबी ने एस्टिमेशन लगाया कि उस जमाने में जो सबसे ज्यादा काबिल जजेस थे वो कौन थे? एक उमर रदियल्लाहु अन्हु खुद, एक अली रदियल्लाहु अन्हु, एक ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु और चौथे अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु। Did you not know that they have a right over you? One day, Al-Ahnaf bin Qais radiallahu anhu and a group of delegates visited Medina, and they brought with them a great deal of war booty. Upon entering Medina, the delegates were welcomed by Umar radiallahu anhu, who asked them, "Where have you made camp?" When they told him where they had left behind their animals and belongings, Umar radiallahu anhu went to that spot with Al-Ahnaf radiallahu anhu. Immediately noticing that the riding animals of the delegates were tied up on a barren spot of land, Umar radiallahu anhu said to Al-Ahnaf radiallahu anhu, "Should you not fear Allah radiallahu anhu regarding these riding animals of yours? Did you not know that they have a right over you? Should you not have allowed them to move about freely so that they can eat from the earth's vegetation?" एक बार अल-अहनाफ बिन कैस रदियल्लाहु अन्हु और कुछ डेलीगेट्स के ग्रुप आए थे जो मदीना में विजिट कर रहे थे, तो वो अपने साथ बहुत ज्यादा माल गनीमत लेकर आए थे। मदीना में एंटर हुए और उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा कि आप लोगों ने अपना कैंप पड़ाव जो है कहाँ डाला है? फिर उन्होंने एक स्पॉट बताया कि जहां पर हमने अपने एनिमल्स और बिलोंगिंग्स को छोड़ा है वही जगह है। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु अल-अहनाफ रदियल्लाहु अन्हु के साथ गए और उन्होंने देखा कि एक एकदम बैरन लैंड यानी जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर उन्होंने अपने जानवरों को बांधा है। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अल-अहनाफ रदियल्लाहु अन्हु से कहा कि आपको अल्लाह का डर नहीं है? आपको नहीं पता कि आपको यहाँ पर अपने जानवर जो हैं उनको थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए था हरियाली में, ताकि वो खाए और रेस्ट करें और खुश होए। इनका भी हक है। अब आप देखें, सिर्फ इंसानों की ही नहीं, अल्लाह की सारी मखलूक की परवाह होती थी, सारी की सारी मखलूक की फिक्र होती थी और उनका हक अदा किया जाता था। ये तरीकाकार होना चाहिए। अगेन दैट आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ एंड आई कीप रिमाइंडिंग यू ऑल कि हम जो है ये पूरी एक्टिविटी से क्या लेसन ले रहे हैं कि हमें जो है इंसानों का हक अदा करना है, साथ साथ अल्लाह ताला की सारी मखलूक, जानवर हो, प्लांट्स हो, एनीथिंग दैट अल्लाह हैज क्रिएटेड और जो हमारे साथ को एग्जिस्ट करती हैं, तो उसके अंदर हमारा काम क्या बनता है? हमारा काम ये बनता है कि हम जो है उनका ख्याल रखें। हम इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं अपने लिए और हमें इनका ख्याल रखना पड़ेगा। इनका एक राइट है, तो वो अगर आपने हक उनका अदा नहीं किया तो फिर आप सोच लीजिए कि जब आप अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाते हैं और खास तौर से अगर वो बेजुबान हो, हाँ, तो फिर उसका फिर कैसा नज़बिल्ला बड़ा मुश्किल मामला हो जाता है। एंड कई बार हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स के साथ भी एट्रोसिटीज होती है और प्लांट्स एंड ट्रीज के साथ भी काफी सारी ज्यादतियां होती है। ये सारी चीजों का हक जो है हम पर है और हमें उसे अदा करना चाहिए और अल्लाह को राजी करने के लिए, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, जस्ट टू मेक अल्लाह जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को प्लीज करने के लिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला खालिक है और सब चीज की बागडोर अल्लाह के हाथ में है। हमें कोई हक नहीं, वी डोंट ओन एनी ऑफ दोज थिंग्स, ना हमने क्रिएट किए और ना हम उसको एक्चुअल सेंस में ओन करते हैं। तो हमें सिर्फ उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से करना है और उसके बाद उसका ख्याल रखना है, उसको मेंटेन करना है, उसका हक अदा करना है। कहीं पे भी हमारे हाथ से कोई ज्यादती ना हो जाए एंड वी हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दैट। यानी एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊं कि लाइक अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली फॉर दैट मैटर इज वेरी क्लोज टू एनिमल्स। हमारे फैमिली में यानी बच्चे, हम बहुत पसंद करते हैं जानवरों को एंड आई हैव माशाल्लाह अ पेट कैट एंड सम टर्टल्स एट होम एंड कुछ प्लांट्स हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज बचपन से ही बच्चों को लगा रखी है कि कैसे उनको फूड देना है, पानी डालना है, कैसे उनका ख्याल करना है, मेंटेन करना है। एंड हम खुद करते हैं तो बच्चे जो है देखते हैं और सुभान अल्लाह नेचुरली बेइज़्निल्लाह वो जो लव है वो डेवलप हो रहा है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ तरबिया बाय द वे। और एक चीज मैंने की थी, जब ये छोटे थे तो इनको मैंने छोटे छोटे प्लांट्स, पॉटेड प्लांट्स जो है गिफ्ट किए थे ताकि उनको द कंसेप्ट ऑफ नर्चरिंग सिखाया जाए। तो दे विल टेक केयर ऑफ द प्लांट्स, वाटर देम, वॉच देम ग्रो, पुट देम नियर द सन, पुट सम मैन्योर, चेंज द सॉइल, यानी एक जिम्मेदारी का एहसास। तो वो भी एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग हो गई। अब कई बार मैंने देखा था, लाइक सम प्लेसेस आई हैव सीन दैट छोटे बच्चों को लोग शौक के मारे छोटे छोटे चिक्स लाकर दे दिया करते थे कि भाई ये खेलेंगे उनके साथ और ये, बट होता क्या था कि वो छोटे बच्चे हैं, अब उन्हें खुद नहीं पता कि इनको कैसे मैनेज करना है, तो दे यूज्ड टू मिस हैंडलिंग में वो उनसे कत्ल हो जाया करते थे, वो
यानी समटाइम्स दे आर स्टेपिंग ओवर इट, समटाइम्स दे आर क्रशिंग देम विद देयर हैंड्स। मतलब ये जो चीजें ये बहुत इनह्यूमन एक्ट्स हो जाते थे। अब वो बच्चे के लिए एक लाइफ टॉय है और माँ बाप बड़े शौक से लाकर उनको दे रहे हैं, दे गेटिंग किल्ड, विच इज टोटली इनह्यूमन। तो उस तरीके की चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। व्हेन यू विजिट जूज और एनी अदर प्लेस, कोई सैंक्चुरी पे आप जा रहे हैं, आप अच्छी तरह से उनको दिखाएं। आप कोई पेट जोन वगैरह में जा रहे हैं, कोई फार्म लैंड पे जा रहे हैं, आप उनको इंटरेक्ट करवाएं, लेकिन मेक श्योर दैट कोई जुल्म और ज्यादती ना हो। नो पोचिंग, नो बुलिंग। यानी एनिमल्स के भी एक कहते हैं ना, वो भी एक जान है, उसकी भी एक फीलिंग्स है, बाकायदा फीलिंग्स होती है। वो एक मखलूक है अल्लाह की। और सुभान अल्लाह, जब आप इनके साथ इंटरेक्ट करते हो या आपका जब उनके साथ क्लोज कनेक्शन होता है, then you realize what kind of emotional exchange takes place, and it's beautiful, it's beautiful. They respond, they react, and you can learn a lot from them, subhanallah. तो एनिमल्स आर अमेजिंग क्रीचर एंड वी हैव टू, एज अ मुस्लिम, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बखूबी उस जिम्मेदारी को अदा करें। एंड हमारे हाथों से कोई जुल्म ना हो, इस बात का ख्याल रखना है। क्योंकि जैसे हमारे सामने हदीस की एग्जाम्पल भी है, एक वो प्रोस्टिट्यूट जिसने एक थर्स्टी कुत्ते को पानी पिलाया तो उसकी बख्शिश हो गई, और एक लेडी जो बाहरी तौर से अपेरेंटली बहुत पायस नजर आती थी, लेकिन उसने एक बिल्ली को बांध कर रखा था, तो उसकी कैसी मुश्किल आ गई थी। तो वी हैव एग्जाम्पल फ्रॉम हदीथ। एंड देन हम देखते हैं अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के किस्से, एंड देन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटरेक्शन विद डिफरेंट एनिमल्स, और किस्वा जो उनकी पेट ऊँटनी थी। यानी देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ सीरा, कि किस तरीके का मामला रहा है। तो हमें जो है ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने बच्चों को और अपने आप को उस तरीके से बनाना है कि हमारे हाथ से अल्लाह की कोई मखलूक जो है वो हर्ट ना हो, डैमेज ना हो। इवन इन स्टेट ऑफ वॉर वी हैव सीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से रूल्स बनाए हुए थे जिससे कि नेचर को हार्म ना हो। बट वी एज ह्यूमंस, वी आर कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइटिंग एंड अब्यूजिंग द नेचर, एंड बिलीव मी, वी आर आंसरेबल। मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस and forgive us, Ya Rab. Gentle without being weak. One day when Umar radiallahu anhu saw people of high rank mistreating those that were under them, he radiallahu anhu said, since when have you made people slaves, when the fact is that their mothers gave birth to them as free men? While discussing the ideal qualities of a leader, Umar radiallahu anhu said, the only person that is suited for this job is one who is gentle without being weak and who is strong without being harsh. Beautiful words, beautiful words. Speaking about the same topic, Radiallahu anhu once said, the kind of leader I want is a man who, if he is among his people while being their leader, will be thought of by an outside observer as nothing more than one of them, and who, if he is among them while being nothing more than one of them, will be thought of by an outside observer as their leader. बहुत प्यारा और बारीक और खूबसूरत नुक्ता यहाँ पे बताया गया है, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है। इसको समझने की कोशिश करिए। जेंटल विदाउट बीइंग वीक, यानी कहते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो शरीफ होते हैं, कमजोर नहीं होते हैं, समथिंग लाइक दैट। जेंटल, नरम दिल, कमजोरी नहीं होती है। एक दिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने देखा कुछ हाई रैंक के लोग मिसट्रीट कर रहे थे, उनके अंडर जो लोग थे उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने इनसे कहा कि कब से आप लोगों ने इन लोगों को अपना खादिम बना लिया है, हालांकि इनकी माओ ने इनको एज अ फ्री मैन पैदा किया है, यानी ये गुलाम नहीं थे, ये आपके अंडर भले काम कर रहे हैं लेकिन ये गुलाम का तबका नहीं है। फिर उन्होंने आइडियल क्वालिटीज ऑफ द लीडर की डिस्कस की। उन्होंने कहा इस जॉब के लिए, यानी वो लीडर वाली जॉब के लिए वो ही बंदा सुटेबल है जो कि जेंटल हो लेकिन कमजोर नहीं, और स्ट्रांग हो लेकिन हार्श नहीं, यानी रूड नहीं होना है। स्ट्रांग का मानी हार्श नहीं होना है, और जेंटल का मानी वीक नहीं होना है। और इसी पर ही सेम टॉपिक पे वो बात करते हुए एक बार कहते हैं कि लीडर कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं मुझे इस तरीके का लीडर चाहिए जो कि अपने लोगों के बीच में हो, तो बाहर वाला कोई उनको देख रहा हो ना, तो वो आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए कि ये लीडर है। यानी वो अपने नीचे तबके वाले जो अंडर उनके लोग हैं उनके साथ इतना घुला मिला और इतना एक लेवल पे होना चाहिए कि बाहर वालों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये लीडर है। और वो जब अपने अंदरूनी लोगों के साथ हो, ओके,
जब अपने अंदरूनी लोगों के साथ हो और उसके मामलात उनके साथ ऐसे होने चाहिए कि वक्त ज़रूरत पे जब वो लीडरशिप की जरूरत होती है ना, तो वो अंदरूनी तौर पे लीडर नजर आना चाहिए, लेकिन बाहरी तौर पे वो लीडर नहीं नजर आना चाहिए। यानी आई एम श्योर आपको यानी थोड़ा सा, क्योंकि आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक इट सिंपल और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को वो नुक्ता समझ आ गया ना कि यानी आप नरम दिल होंगे लेकिन कमजोर नहीं, और आप स्ट्रांग होंगे लेकिन रूड नहीं, और आप अपने आप को अपने लिए सेपरेट प्रोटोकॉल नहीं महसूस करेंगे। मैं लीडर हूं, मैं खलीफा हूं, मैं द फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर हूं, तो मेरे लिए रेड कारपेट रोल होगा और मेरे लिए स्पेशल इंतजाम होगा और बिजनेस क्लास और ये नथिंग लाइक दैट। यू विल बी ऑन द सेम लेवल, ताकि कोई बाहर वाला जब आपको देखे तो उसे आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए कि लीडर कौन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लीडिंग बाय एग्जाम्पल, इवन अ लीडर बाय एग्जाम्पल। Umar radiallahu anhu worked himself in the refugee camps. Abu Hurairah radiallahu anhu said, may Allah have mercy on Ibn Hantama, that is Umar bin al-Khattab radiallahu anhu. Once during the year of the ashes, I saw him carrying 2 sacks on his back and holding a container of olive oil in his hand. He and Aslam would take turns carrying those items. Then when Umar radiallahu anhu saw me, he asked, where are you coming from, O Abu Hurairah? I replied, from nearby. I began to take turns with them as well, and we carried the items until we reached Dirar, where we came across approximately 20 families from the Muharrib tribe. Again, जो एशेस वाला साल था, सूखे वाला साल था, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु जो है अपने पीठ पर 2 गोनियां लेकर जा रहे थे और हाथ में ऑलिव ऑयल था। तो उनके साथ कौन थे? असलम रदियल्लाहु अन्हु, और वो टर्न बाय टर्न जो है वो आइटम कैरी कर रहे थे। तो अबू हुरैरा उनके सामने आया तो उन्होंने उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? और फिर अबू हुरैरा भी शामिल हो गए टर्न लेने के लिए, और वो उठा के तीनों जन कहाँ पर जा रहे थे? एक जगह थी जिसका नाम था दिरार। वहां पर एटलीस्ट 20 फैमिलियां थी जो कि मुहारिब ट्राइब को बिलोंग करती थी। उमर रदियल्लाहु अन्हु asked them, what has made you come here? They replied, hunger. To show us the seriousness of their predicament, they took out for us the barbecued skin of a maitha animal. A maitha animal is one that is not slaughtered Islamically, but has instead died of natural or other causes in Islam. It is forbidden to eat such meat unless out of dire necessity, which was the case regarding the aforementioned 20 families. उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या वजह है जो आप इधर आए हैं? तो उन्होंने कहा, भूख। फिर उन्होंने एक बारबेक्यूड स्किन, एक मैता एनिमल का निकाला। मैता एनिमल क्या होता है? ये इसका जो है स्लॉटरिंग जो है सही इस्लामी तरीके से नहीं होता। ये वो जानवर है जो कि नेचुरल डेथ जिसकी हो गई है या कोई और वजह से इसकी डेथ हुई होती है, ये प्रॉपर से ज़हबिया वो जैसे कहते हैं ना, वो नहीं हुआ होता उसका। तो अब इस्लाम का फिक्की रूल क्या है कि अगर नॉर्मल डेज हो तो इस टाइप का एनिमल आप नहीं खा सकते, जो कि शरिया तरीके से ज़िबा नहीं हुआ, उसको आप नहीं खा सकते। लेकिन अगर कोई डायर नेसेसिटी हो, जो कि अभी यहाँ पर मामला दिख रहा था, तो उसमें वो परमिसिबल हो जाता है। They would eat that skin. They also took out crushed bones, which they would also eat. यानी आप देखें कितनी गुर्बत की और भूखमरी की हालत थी कि स्किन खा रहे थे वो लोग, बारबेक्यू करके स्किन खा रहे थे, उसके बाद बोन्स को क्रश करके खा रहे थे। Then I saw Umar radiallahu anhu cast aside his robe, after which he proceeded to cook for them and feed them until they become full. अब उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है उन्होंने अपना रोब हटाया, निकाला और उनके लिए खाना बनाना शुरू किया और फिर उनको खिलाया जब तक कि वो पूरी तरह से फुल नहीं हो गए। He then sent Aslam to Medina, and the latter soon came back with camels, which the 20 families then rode on in the company of Umar radiallahu anhu or Aslam radiallahu anhu until they reached Al-Jabana. Then he radiallahu anhu gave them clothing, and he continued to check up on them and on others like them until Allah subhanahu wa ta'ala lifted from them that drought and famine. अब जब वो लोग को खाना खिला के फुल कर दिया, फिर उन्होंने असलम रदियल्लाहु अन्हु को मदीना भेजा और उनके थ्रू वो फैमिली के लिए सवार होने के लिए कैमल्स मंगवाए, और फिर उन लोगों को एक जगह पर अल जबाना तक लेकर गए। वहां पर उनको कपड़े वगैरह दिया और उनको चेक करते थे बाकायदा कि उनको कोई और चीजों की जरूरत तो नहीं है, तब तक के जब तक के अल्लाह सुब्हानो तआला ने वो सूखा उस जगह से उठाना दिया, यानी बारिश वगैरह नहीं हुई, तब तक के वो उनके साथ उनको हेल्प और असिस्ट करने में लगे रहे। अगेन आप देखिए हमारे पास एग्जाम्पल आ रहा है कि खुद बोझा ढो के
खुद अपने हाथ से पका के, खुद उनको खिलाकर, फिर उनको उनके सही जगह पे, डेस्टिनेशन पे, जहां पर उनको और चीजें, रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए, खुद पहुंचा के पूरा इंतजाम करके फिर वो तसल्ली करते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने डेलीगेट कर दिया और वो कर लें। कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत। आई डोंट थिंक सो एनीबडी वुड एवर डू दैट। यानी आप देख सकते हैं कि सुभान अल्लाह, इस टाइप के लीडर्स, इसे कहते हैं खलीफा, इसे कहते हैं मुस्लिम एंड मोमिन बिलीवर। ये होती है बात करने वाली। लेकिन हम लोग अपने ही घर में, हमारे पास खद्दामा एक दिन ना आए तो शायद हम खाना नहीं पकाते, हम अपने ही बच्चों को खिला नहीं पाते, बाहर वालों की बात अब छोड़ें। यानी हम लोगों के अंदर वो एनर्जी, हम लोग के अंदर वो जज्बा, हमारे अंदर वो कुव्वत ही नहीं रही। सुभान अल्लाह। मे अल्लाह हेल्प अस, मे अल्लाह गिव अस हिदाया, मे अल्लाह गिव बरका इन अवर टाइम एंड हेल्थ, मे अल्लाह गिव अस बरका इन अवर एनर्जी, ताकि हमारे हाथों से हमारी हयाती में अच्छे अच्छे काम हो, वो सारे काम हो जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला राजी हो जाए। या रब, आमीन या रब। Welfare state. Umar was very strict in ensuring that no person remained hungry in his state. Every poor, injured, and needy person had been given a stipend from the public treasury. A record of hundreds of thousands of people was maintained. They received their stipends in a timely manner. First, food was prepared from 25 kgs of flour, and then it was analyzed for how many people this food was sufficient. The answer was that it was sufficient for 30 people. During the evenings, the same amount of food was prepared and served and analyzed. It was also sufficient for 30 people. It was decided to provide every person with 50 kgs of flour every month. Afterwards, Umar ascended the pulpit and announced, I have decided to provide this amount of food to the people. Whoever decreases it will be answerable to Allah subhanahu wa ta'ala. अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे, और उनका एक रूल था, कानून था कि उनके होते हुए उनकी स्टेट में कोई भी बंदा भूखा नहीं रहेगा। हर गरीब, हर इंजर्ड बंदा, हर नीडी बंदा, जरूरतमंद, जख्मी, बीमार, उसको एक स्टाइपेंड दिया जाएगा पब्लिक ट्रेजरी से। और फिर उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है अवाम का उनके पास मेंटेन था, वो उनको टाइम द टाइम प्रॉपरली स्टाइपेंड देते थे। पहले 25 किलो का खाना बनाया गया और फिर एनालाइज किया गया कि ये खाना कितने लोगों में बस हो जाता है, तो उसका उनको डेटा मिला कि 30 लोगों के लिए ये काफी हो जाता है। फिर दोबारा शाम को उतना ही खाना बनाया जाता है और फिर उन्होंने कैलकुलेट किया कि ये तकरीबन 30 लोगों के लिए इनफ हो जाता है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि 50 केजी 50 किलो का आटा हर एक आदमी को मंथली मिलेगा। और फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है मेंबर पे असेंट करके उन्होंने अनाउंस किया कि 50 किलो का आटा हर एक बंदे को मंथली बेसिस पे मिलेगा, और अगर किसी ने भी ये अमाउंट डिक्रीज किया तो वो खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला को जवाबदेही है। यानी आप देखें, उन्होंने प्रॉपर अपने तरीके से रिसर्च की, प्रॉपर अपने तरीके से एनालिसिस किया, फिर एक रीजनेबल जो माफिक अमाउंट है उसको फिक्स किया, फिर वो रूल को अप्लाई किया, और उसके बाद लोगों को अल्लाह से डरा भी दिया कि अगर किसी के अंदर दिल में कोई माल की मोहब्बत आ जाए और वो अपना अकाउंट्स बढ़ाने के लिए ये क्वांटिटी को कम करता है तो वो खुद अल्लाह को जवाब देगा। Regarding how Umar radiallahu anhu was cautious when it came to accepting hadith narrations. One day Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu asked permission to enter upon Umar bin al-Khattab radiallahu anhu. Abu Musa radiallahu anhu heard no reply, and thinking that Umar radiallahu anhu was probably busy, he radiallahu anhu left. Umar radiallahu anhu had in fact been preoccupied and was not able to answer Abu Musa's request to enter. However, a few moments later, Umar radiallahu anhu was less busy, and so he asked someone nearby, did I not hear the voice of Abdullah bin Qais, that is Abu Musa al-Ash'ari? Give him permission to enter. He has already returned from whence he came. Someone replied. Umar radiallahu anhu asked someone to bring Abu Musa radiallahu anhu back, and when Abu Musa radiallahu anhu returned, Umar radiallahu anhu asked him why he had left so quickly. Abu Musa radiallahu anhu replied, we have been ordered to do that. Here Abu Musa radiallahu anhu was referring to the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if one of you asks permission to enter the private property of another person 3 times without permission being granted to him, then let him return. That is, then let him leave. You must bring me proof, that is witness to back up your claim that the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave that command, ordered Umar radiallahu anhu. Abu Musa radiallahu anhu then went to where the people of the Ansar were gathered, and he radiallahu anhu asked them to testify that he radiallahu anhu was telling the truth. In other words, he radiallahu anhu asked if anyone among them had also heard the same hadith from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The people of the Ansar said to him, only the youngest among us will testify on your behalf regarding this matter.
The youngest among them, Abu Sa'id radhiyallahu anhu, then went to Umar radhiyallahu anhu and said, we were indeed commanded to do that. That is to leave. If after having asked permission to enter 3 times, still no one granted permission to enter. Umar radhiyallahu anhu, who had not been aware of this Islamic etiquette, then said, I was not aware about this command from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, I suppose. I was distracted at the time. He sallallahu alaihi wasallam gave that command by business in the marketplace. This is recorded, by the way. Okay. Nabi sallallahu alaihi wasallam जो भी एक्शन करते थे या हुक्म देते थे या उनके वर्डिंग्स होते थे, वो सब जो उनके आसपास सहाबास थे, they used to listen and they used to record. सुभान अल्लाह. अब उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु were the two men जो कि हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास रहते थे. बट ऑफ कोर्स जो उनके नॉर्मल काम होते थे, कभी कोई वॉर में जा रहा है, किसी को लीड कर रहा है, कोई मार्केट प्लेस में है, यानी नॉर्मल काम भी चल रहे होते थे. सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि कुछ चीजें हुई हो जब ये मौजूद नहीं हो. दिस हदीस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स. लेकिन इसमें पॉइंट जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि एक बार अबू मूसा अल-अशअरी रदियल्लाहु अन्हु आए उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के पास और फिर उन्होंने परमिशन सीख की, तो रिस्पॉन्स नहीं आया. उमर रदियल्लाहु अन्हु वाज बिजी, तो अबू मूसा अल-अशअरी रदियल्लाहु अन्हु लौट गए. अब उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनकी आवाज सुनी थी, तो उन्होंने पूछा किधर है वो, तो उन्होंने कहा वो लौट गए. तो फिर उन्होंने किसी को भेजा और कहा उन्हें वापस बुला के लाओ. फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्यों चले गए, क्यों लौट गए. तो अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हमें यही करने का हुक्म दिया गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी. तो फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप मेरे पास प्रूफ लेकर आइए कि ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है. तो अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु पहुंचे अंसार के पास और उनसे कहा कि आप लोगों को इसकी हदीस पता है, ये वाली हदीस पता है, उसने सुना है. तो उन्होंने कहा कि हम में से जो छोटे हैं, यंगेस्ट हैं, उनको पता होगा. तो उनमें से अबू सईद रदियल्लाहु अन्हु जो थे वो निकले. उन्होंने कहा कि हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके का कमांड दिया था. फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु के सामने उनको लाया गया, उन्होंने बताया और उस पर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं इस आदाब के बारे में, इस अखलाक के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी. उस वक्त मैं मार्केट बिजनेस के सिलसिले में मार्केट प्लेस में गया हुआ हूँगा. द पॉइंट इज दैट कोई भी, हालांकि देखा जाए तो अबू मूसा अल-अशअरी रदियल्लाहु अन्हु भी बहुत नॉलेजेबल पर्सन है. उन्होंने अगर कुछ बात कही है, येट उमर रदियल्लाहु अन्हु डिड नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज ही सेड दिस इज द हदीस. ही सेड नो, गेट मी द रेफरेंस, मुझे कोई प्रूफ लाओ. तो हम जो हैं इंटरनेट पे या किसी ने भी कुछ भी कह दिया, हम बड़ा एक्साइटेड होके खुशी खुशी फटाफट फॉरवर्ड कर रहे हैं. हम कभी ये चेक भी नहीं करते कि क्या ये ऑथेंटिक है कि नहीं है. ये रेफरेंस जो मैं बिना रेफरेंस के घुमा रही हूँ इन्फॉर्मेशन, क्या ये सही है या गलत है. ऐसा तो नहीं कि मेरी जो फीलिंग है कि मैं कुछ खैर का काम कर रही हूँ लेकिन मैं शायद कोई फैब्रिकेटेड या झूठी हदीस तो नहीं फॉरवर्ड कर रही हूँ. यानी हम लोग जो हैं वी आर सो लीस्ट बॉदर्ड. हमारी नीयत अच्छी होती है लेकिन हमको जो करने वाले काम है वो हम नहीं करते. तो ये सारी चीजों से हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द फर्स्ट हैंड ग्रुप, यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठते बैठते थे, यानी एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की नॉलेज के बारे में उन्हें कितनी बेहतरीन किस्म की अंदाजा था. यानी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पिछले आज के सेशन में हमने देखा कि अबू मूसा अल-अशअरी रदियल्लाहु अन्हु की नॉलेज क्या थी. वन ऑफ द बेस्ट 4 जजेस थे. ब्यूटिफुल नॉलेज, ब्यूटिफुल एप्लीकेशन, थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल, दोनों सेंसेस में ही वाज सो गुड. येट एक छोटा सा मामला आए और चले गए. उन्होंने एक बोला कि हमें ये सिखाया गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, वो एक स्टेटमेंट को उन्होंने कैसे सीरियसली लिया. और हम लोग बड़ी बड़ी चीजों के दावे कर जाते हैं. कई बार हम लोग फतवाज भी दे देते हैं, बैठे बैठे हम ये हराम है, ये हलाल है, हम कह जाते हैं. हमें ये नहीं पता कि ये मामला कितना संगीन है. हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लेकर, किसी हदीस को लेकर झूठ सच का फतवा नहीं दे सकते. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एज इट इज. जो सही है, जो ऑथेंटिक है, जिसका जो मानी है, उसमें जेर जबर का फर्क करे बगैर हमें आगे पहुंचाना है. हमारी इंटेंशन ठीक होती है लेकिन हमारा एक्शन सही नहीं होता. ये दोनों चीजें सही होनी चाहिए. इंटेंशन भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए, दूसरा हमारा एक्शन जो सही तरीकाकार है उस तरीके से होनी चाहिए. सो द मैटर एंड द इंटेंशन बोथ शुड बी करेक्ट, तब जाके वो एक्शन जो है काबिल कबूल होगा. वरना ऐसा ना हो कि नाज़ुबिल्लाह हमारे थ्रू कोई गलत इंफॉर्मेशन फैल जाए. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर हम ना भेजें कोई इंफॉर्मेशन तो हमारी पकड़ नहीं है, लेकिन अगर हमने कोई गलत इंफॉर्मेशन भेज दी तो डेफिनेटली वी आर रिस्पॉन्सिबल. सो बी वेरी वेरी केयरफुल एज फार एज इस्लामिक नॉलेज इज कंसर्न. आप अगर किसी को इम्पार्ट भी कर रहे हो कोई इस्लामिक नॉलेज, तो मेक श्योर
that what you are imparting, what you are sharing, what you are forwarding is authentic, is there with reference, and you're sure about it, and then only if it is benefiting, then only forward it. Otherwise कोई भी जबरदस्ती नहीं है आपके ऊपर कि आपको लाजमन forward करना है. Strict standards upon himself and his family. Umar Adilanu imposed strict standards not just upon himself but upon his family as well. According to Umar's rule, they too had to suffer more during hard times than did the rest of the population, a point that is clearly illustrated in the following narrative. One day during the year of the ashes, Umar Adilanu saw a watermelon in the hands of one of his sons. Umar Adilanu immediately exclaimed, "What indeed, O son of the leader of the believers, are you eating? A fruit? While the members of the nation of Muhammad ﷺ have emaciated bodies due to a lack of food." The young boy ran out crying, but Umar Adilanu did not let the issue rest until he inquired further into the matter and found out that his son had purchased the watermelon for a handful of seeds. उमर अदिलानु बहुत स्ट्रिक्ट थे अदल के मामले में और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के मामले में. ऐसा नहीं था कि अपनी फैमिली को, अपने घर के वालों के लिए रूल्स अलग, बाहर वालों के लिए रूल अलग, गरीबों के लिए रूल अलग, ऐसा नहीं था. जब ये ईयर ऑफ एशेस था, जब वो सूखे वाला साल चल रहा था, तो उसमें एक बार उन्होंने देखा कि उनके बेटे के हाथ में वाटरमेलन है, तरबूज है. तो उन्होंने इमीडिएटली पूछा कि तुम कहाँ से, किस तरीके से तुम फ्रूट खा रहे हो. और जो उम्मत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ऐसी बेचारी भूखमरी में है, लैक ऑफ फूड की वजह से उनकी हालत खस्ता है, आप कैसे ये खा रहे हो. तो वो जो यंग लड़का था वो बाहर भागा रोते हुए. लेकिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने इस इशू को वहां पर खत्म नहीं किया. उन्होंने जाके पूरी इंक्वायरी निकाली. फिर उन्हें पता चला कि ये बेटे ने खरीदा वाटरमेलन हैंडफुल ऑफ सीड्स के अगेंस्ट में, यानी बाकायदा उसने खरीदा था और वो खाने की कोशिश कर रहा था. तो इसमें सोचने वाली बात यही है कि अदल का जब मामला हो, ठीक है, अदल का मामला जब हो तब अपनी फैमिली के लिए रूल अलग, दूसरों के लिए रूल अलग नहीं हो सकता. आप एक पोजीशन पर हो, आपके डिपेंडेंट्स जो हैं वो सब आपकी जिम्मेदारी है. तो आप एक अलग अलग अपने लोगों को एक अलग प्रिविलेज, अलग प्रोटोकॉल्स नहीं दे सकते. आपको फेयर होना पड़ेगा. जितने आपके डिपेंडेंट्स हैं, जितने आपके अंडर है, उनके साथ, सबके साथ अदल करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वो हॉट सीट पे बैठते हो तो आपकी पकड़ है. Abdurrahman bin Auf advises Umar. During one of the Hajj pilgrimages that Umar radiallahu anhu performed during his caliphate, Abdurrahman bin Auf radiallahu anhu brought to Umar's attention someone who was engendering mischief among the pilgrims. Umar radiallahu anhu became angry and resolved to deliver a speech in which he would outline some important policies. However, considering the sensitive nature of Umar's speech, Abdurrahman radiallahu anhu advised Umar radiallahu anhu against delivering it to the pilgrims. Abdurrahman radiallahu anhu said, "O leader of the believers, do not do this. The Hajj season brings together the riff-raff among the people, mobs of uneducated people from various cities. They will make up the majority of the people who will be near you when you stand up to deliver your speech. I fear that you will say something that they will twist and change. They will not understand what you will say, and as a result, they will misinterpret your words. So wait until the return to Medina, which is the city of the Hijrah, the place to which the Muhajirun migrated, and of the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Once there, you will be in the sincere company of those who have an understanding of the religion and are of high ranking because of their knowledge and deeds. You can speak your mind to them, and the people of knowledge among them will understand what you will say, and they will place your words in their proper and intended context." Umar radiallahu anhu replied, "By Allah, the first opportunity I get in Medina, I will do as you say, Allah willing." एक बार हज के सीजन में उमर रदियल्लाहु अन्हु अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु के साथ थे, एंड अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु ने उमर रदियल्लाहु अन्हु को कुछ बातें बताई कि कुछ लोग थे पिलग्रिम्स में जो कि कुछ खुराफात करने का इरादा रखते थे. उमर रदियल्लाहु अन्हु बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक स्पीच देंगे और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बयान करेंगे. अब अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु अन्हु को पता था कि ये मैटर थोड़ा सेंसिटिव नेचर का है और उमर रदियल्लाहु अन्हु का भी नेचर वो अच्छी तरह जानते थे. तो उन्होंने उनको एडवाइस दिया. उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब हज का सीजन है तो अलग अलग कुंबे के अलग अलग लोग
अलग अलग लेवल ऑफ नॉलेज के आते हैं और इनमें काफी ज्यादा लोग जो हैं वो जाहिल हैं। तो ये लोग, इनका तबका ज्यादा है, जाहिलों का तबका ज्यादा है। तो वो कहते हैं कि आप की बात जो है वो ये लोग ट्विस्ट करके, टर्न करके अपना एक अलग नजरिया उसमें डालेंगे, मिस इंटरप्रेट करेंगे, और मिस इंटरप्रेट करने की वजह से बहुत खुराफात हो सकती है। कहते हैं आप इसके बदले अपनी जो पॉलिसी और जो स्पीच है वो मदीना में आप डिलीवर करिए। मदीना के लोग ज्यादा सुलझे हुए हैं, मदीना के लोगों की नॉलेज अच्छी है, मदीना के लोगों का इल्म अच्छा है, तो वो दीन की नॉलेज होने की वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सुलझी हुई है। तो आप जो अपने दिल की बात करना चाहते हैं, दिमाग आपका जो हो, यानी यू वांट टू स्पीक योर माइंड टू देम, तो आप उनके साथ जो आप बयान करेंगे वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, और जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो बेटर वहां पर मिल सकता है। ये एडवाइस सुनने पर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फिर रिस्पॉन्ड किया कि वल्लाही जैसे ही मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है मदीना में, मैं ये स्पीच डिलीवर करूंगा इंशाअल्लाह। यानी एडवाइस भी देखिए आप वो कितने स्पोर्टिंगली लेते हैं। हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो, अगर हमसे छोटे लेवल के कुछ लोग हमें कुछ कहने के लिए जाते हैं या कुछ एडवाइस करना चाहते हैं, तो ये हमारी शान के खिलाफ हो जाता है, विच इज सो रॉन्ग। हमारे से छोटे भी उम्र में और अगर लेवल में भी, तो अगर कोई एडवाइस देते हैं तो हो सकता है कि वो हमारी सोच से बेहतर हो, सुन लेना चाहिए, और अगर फायदेमंद लगती है तो अप्लाई भी कर लेना चाहिए। दूसरा ये कि ये बात आप जहन में रखें, एक और एक चीज इससे हमें लेसन मिलता है कि अपने ऑडियंस की जरूर नॉलेज रखें। आप, आपके दिल में बहुत अच्छी बातें होंगी, आप की आपकी नीयत भी अच्छी होगी, लेकिन भैंस के आगे बीन नहीं बजाई जा सकती। हमें उन लोगों के सामने अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए जहां पर उसका इंटरप्रिटेशन सही तरीके से हो। यानी कि जहां पर जहालत और जहां पर कम अमल और कम इल्म हो, वहां पर अपना सर फोड़ना नहीं चाहिए। इट इज वेस्ट ऑफ एफर्ट्स, एंड कई बार मिस इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस होते हैं। अभी यहाँ पर उनकी नीयत अच्छी थी, ही वांटेड टू टेक इमीडिएट एक्शंस टू स्टॉप इट, लेकिन एक वाइज आदमी ने उनको बताया कि ये इस तरीके से मिस इंटरप्रेट हो सकता है, और इनकी जहालत की वजह से जो है और मसले खड़े हो सकते हैं। सो साइलेंस विल बी द बेस्ट थिंग। ये ऑडियंस इस स्पीच के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह लॉट ऑफ हेडेक्स वाज सॉर्टेड आउट। बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि नए मुसीबत क्रिएट होने से पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गए बिइज़्निल्लाह। और फिर उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने उनकी एडवाइस को फॉलो किया, अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु की एडवाइस को फॉलो किया, और फिर ही सेव्ड हिज स्पीच फॉर मदीना। Dar ad-Daqiq, the house of supplies. During the period of the drought, Umar radiallahu anhu fed the people from Dar ad-Daqiq, a public welfare institution. Dar ad-Daqiq consisted of one or more buildings in which emergency food supplies were stored. Those supplies consisted of flour, as-sawiq, a kind of food made from ground wheat and barley, dates and raisins. In order to feed the throngs of refugees who came to Medina, Umar radiallahu anhu continued to rely on the local food that was stored in Dar ad-Daqiq until aid arrived from Egypt, Asham, Syria, and surrounding regions, and Iraq. Umar radiallahu anhu then expanded the Dar al-Daqiq institution so that it would be able to feed the tens of thousands of people who sought refuge in Medina. The expanded role of the institution came to an end when, after 9 months, it began to rain again and people were able to return to their normal lives. As this example illustrates, Umar radiallahu anhu always had the ability to improve governmental institutions in order to meet the ever-expanding needs of the people. एक दार दकीक हाउस ऑफ सप्लाईज बनाया हुआ था। जब ये ड्रॉट का सीजन चल रहा था, ईयर ऑफ द एशेस चल रहा था, तो लोगों को फीड करने के लिए ये एक हाउस ऑफ सप्लाई बनाया गया था। दार दकीक एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, पब्लिक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन था। इसके अंदर बिल्डिंग्स थी, इमरजेंसी फूड सप्लाईज यहाँ पे स्टोर हुए थे, और इसमें असविक जो कि एक काइंड ऑफ फूड बनता था जिसमें बुरगुल यानी वीट जो होता है वो ग्राउंड होता था, बार्ली ग्राउंडेड होते थे, और खजूर और किशमिश इससे बनती थी, और फ्लावर इससे बनती थी असविक। और उसके बाद बहुत सारे रेफ्यूजीज आते थे जो मदीना में उधर ठहरे हुए थे, तो उनको ये प्रोवाइड किया जाता था। उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो लोकल फूड जो दार दकीक में स्टोर हुआ था उस पर डिपेंड करते थे, और फिर आसपास के इलाके जैसे मिस्र, शाम, सीरिया, इराक से और भी एड्स आने लगा।
तो फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने डिसाइड किया कि वो दारुल हकीकी इंस्टीट्यूट को एक्सपैंड करेंगे ताकि और भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स, हजारों जो लोग आ रहे हैं रेफ्यूजी बन के मदीना में, उनको फूड प्रोवाइड कर सकें और ये इंस्टीट्यूट को एक्सपैंड कर सकें। लेकिन 9 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई और फिर लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों में, अपने अपने सिटीज में पहुंचने लगे और जिंदगी जो है वो नॉर्मलाइज होने लगी। लेकिन इस एग्जाम्पल से हमें ये बात का जरूर पता चलता है कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो मौके की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए जैसी जरूरत होती थी उस तरीके से अपनी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाने की ताकत रखते थे। वो देखते थे कि अगर डिमांड है इसकी और लोग ज्यादा आ रहे हैं तो वो अपनी जो प्रोविजंस देनी चाहिए उसको बढ़ाने के लिए हमेशा रेडी रहते थे, विच इज अ वेरी गुड साइन ऑफ अ गुड सर्वेंट लीडर। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डिस्कशन है तो आप बोलिए। इफ नॉट देन वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ टाइम फॉर टुडेज सेशन। ऑलराइट, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।